Hello children, welcome to this class. I am Poonam Bagga and we are studying class 8th maths. These days we are studying chapter 9 algebraic expressions and identities. We have learned how to multiply one monomial by another monomial. We have also learned to multiply a monomial by a binomial or by a trinomial, and also we can multiply a monomial by any polynomial having any number of terms. Today we are going to learn how to multiply one polynomial by another polynomial, and while doing this multiplication we actually multiply each term of one expression by each term of the other, and then we add the products. Let us suppose we take two binomials a plus b, this is the first binomial, and the other one as c plus d, and let us now multiply these two binomials. यहाँ पर हम ये दो polynomials ले रहे हैं जहाँ पर number of terms हैं 2, and so they are called binomials. हमने monomial को multiply करना तो सीख लिया है, आज हम सीख रहे हैं कि अगर हमारे पास दो binomials हैं तो उन्हें कैसे multiply करेंगे. And here we will be multiplying each term of one expression by each term of the other. पहले expression की हर एक term दूसरे एक्सप्रेशन की हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होगी. पहले एक्सप्रेशन की फर्स्ट टर्म है a और ये मल्टीप्लाई होगी दूसरे एक्सप्रेशन की दोनों टर्म से, c से भी और d से भी. इसी तरह से फर्स्ट एक्सप्रेशन की ये जो सेकेंड टर्म है b, यहाँ पर दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय बोथ द टर्म्स c एंड बाय d ऑफ द सेकेंड एक्सप्रेशन, and in doing so what we will get it as a into c will be ac plus a into d will be ad. Then multiply b by c, you will get bc plus b into d will be bd, and in doing so what we have done, we have multiplied each term of one expression a and b here in this case by each term of the second expression here c and d. a को हमने c और d दोनों से मल्टीप्लाई किया है, साथ ही साथ b को भी हमने c और d दोनों से मल्टीप्लाई किया है, और ऐसे में हमें जो प्रोडक्ट्स मिले हैं लास्ट में हमने उनका सम लिख दिया है. Add the products. Getting it? So this is the final answer. What else? The expressions that are multiplied to get the product are called the factors of the product. यहाँ पर जिन दो एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करके हमें ये प्रोडक्ट मिल रहा है, ये दोनों एक्सप्रेशंस इस प्रोडक्ट के फैक्टर्स कहलाते हैं. This is similar to the case if we multiply 6 and 4. We get 24, and then we say that 6 is a factor of 24 and also 4 is a factor of 24, ऐसा हम कहते हैं. तो वही काम यहाँ हो रहा है algebraic expressions में. जब हम दो expressions को multiply कर रहे हैं तो हमें जो product मिल रहा है ये दोनों expressions इसके factors कहलाते हैं. And this concept will be used in chapter 14 factorization, where we will be actually factorizing a product into its factors. Then it will be much more clear to you. Now here the main focus is on multiplying one polynomial by another polynomial, and let us do some examples. Multiplying a binomial by a binomial, we are doing these examples and then this will be very much clear to you. This is the first one, 3z plus 4b into 2a plus 3b. कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? यहाँ जो पहले एक्सप्रेशन की फर्स्ट टर्म है इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, तो हम यहाँ इसको लिख सकते हैं 3z into 2a plus 3b. हमने इस 3z को इस पूरे बाइनोमियल से मल्टीप्लाई कर दिया है 2a plus 3b, और फिर हम लेंगे यहाँ से सेकेंड टर्म जो है plus 4b. सो राइट इट एज plus 4b, और अब इस plus 4b को भी हम इस सेकेंड बाइनोमियल से पूरा मल्टीप्लाई करेंगे 2a plus 3b. इसको समझिए आप, बहुत ज़रूरी है. ये सही हुआ तो आगे सब कुछ सही चलेगा. फर्स्ट टर्म को हमने सेकेंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया और फिर सेकेंड टर्म को भी हमने सेकेंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया. देन व्हाट एल्स? 3z विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2a, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. इट विल बी 3 2 6 एंड za. देन मल्टीप्लाई 3z बाय 3b, 3 3 9 zb. देन हियर वी स्टार्ट विद द सेकेंड केस. देखिए यहाँ पर ब्रैकेट खत्म हो रहा है तो ये जो 3z है बस 2a और 3b से ही मल्टीप्लाई होगा. व्हाट वी आर डूइंग? वी आर मल्टीप्लाइंग 3z बाय 2a प्लस 3b. तो यहाँ पर 3z की रेंज यहीं तक है, 2a और 3b तक, वही हमने किया है. अब आगे नया केस स्टार्ट हो रहा है. 4b को मल्टीप्लाई करेंगे 2a से. इट विल बी 4 2 8 एंड देन ba, और वी कैन राइट इट एज ab. And then what else? 4b will be multiplied by 3b. So 4 3s are 12 and b into b will be b square. And now there are no two like terms, and so this is the final answer.
गॉट इट। यहाँ हमने क्या किया है, पहले एक्सप्रेशन की हर एक टर्म को दूसरे एक्सप्रेशन की हर एक टर्म से मल्टीप्लाई किया है। 3z को हमने 2a और 3b दोनों से मल्टीप्लाई किया जिससे हमें ये दोनों टर्म्स मिल गई, और इसी तरह से 4b को भी हमने 2a और 3b दोनों से मल्टीप्लाई किया, यहाँ देखिए आप, जिससे हमें ये दोनों टर्म्स मिल गई, और फिर इनका जो सम है वो हमें दे रहा है यहाँ पर टोटल प्रोडक्ट ऑफ दीज टू एक्सप्रेशंस। ओके, क्लियर। वी टेक वन मोर एग्जाम्पल। हियर वी हैव 3y माइनस 8 इंटू 5y माइनस 1। तो कैसे करेंगे, पहले एक्सप्रेशन की जो फर्स्ट टर्म है इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस सेकेंड एक्सप्रेशन से या बाइनोमियल से। वी राइट इट एज 3y इंटू 5y माइनस 1। ठीक है, फर्स्ट टर्म को हमने सेकेंड बाइनोमियल से मल्टीप्लाई किया। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर ये जो सेकेंड टर्म है इसको सेकेंड एक्सप्रेशन से, और सेकेंड टर्म क्या है, इज इट 8 और इज इट माइनस 8? Yes, it is minus 8. We write here minus 8, और अब हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेकेंड एक्सप्रेशन से जो है 5y माइनस 1। ठीक है, फर्स्ट टर्म को सेकेंड एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई किया, फिर सेकेंड टर्म को सेकेंड एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई किया। यहाँ ये जो दो टर्म्स ले रहे हैं हम फर्स्ट एक्सप्रेशन से ले रहे हैं। अब आगे हम मल्टीप्लाई करेंगे 3y को इन दोनों ही टर्म से और फिर माइनस 8 को इन दोनों ही टर्म से। व्हाट वी गेट, 3 5 15 एंड y इंटू वाई विल बी y स्क्वायर माइनस 3y इंटू 1 विल बी 3y। ठीक है, नाउ मल्टीप्लाई माइनस 8 बाय 5y, इट विल बी माइनस 8 5 40 एंड y विल ऑल्सो बी देयर। देन माइनस माइनस प्लस 8 1 8। ठीक है, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, रिमेंबर दिस, जब भी बाहर माइनस हो ब्रैकेट के बाहर तो ये जो साइन है ये चेंज होता ही है, इसको ध्यान रखना है हमेशा। Now what we see here, are there any two like terms? And yes, there are two like terms. माइनस 3y माइनस 40y, यहाँ पर वेरिएबल सेम है, पावर्स भी सेम है, तो ये दोनों टर्म्स जो हैं लाइक टर्म्स हैं और इनको अब हमें ऐड करना होगा। एंड व्हाट वी गेट नाउ, वी विल बी एडिंग द मिडिल टर्म्स। दिस विल टर्न आउट टू बी 15y स्क्वायर माइनस माइनस 3 माइनस 40, दोनों नेगेटिव हैं, एड अप हो जाएंगे और नेगेटिव आंसर आएगा माइनस 43y प्लस 8। Now we don't have any two like terms and so this is the final answer. Getting it? Let us now multiply a binomial by a trinomial. Again we take this example. How to multiply? We will be multiplying each term of this binomial by each term of this trinomial. बाइनोमियल की हर एक टर्म को ट्राइनोमियल की हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करना है। इसके लिए पहले हम यहाँ पर फर्स्ट टर्म लेते हैं a और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस सेकेंड एक्सप्रेशन से जो है a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 5। ठीक है, फर्स्ट टर्म लिया हमने और इसको मल्टीप्लाई किया इस सेकेंड एक्सप्रेशन से। अब यहाँ से फर्स्ट एक्सप्रेशन की सेकेंड टर्म लेंगे जो है प्लस 7 और अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे सेकेंड एक्सप्रेशन से, a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 5। ऐसा करने से अब हम इजीली इस एक्सप्रेशन से a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 5 इससे a को मल्टीप्लाई कर पाएंगे, या कह लीजिए इस एक्सप्रेशन की हर एक टर्म से हम a को इजीली अब मल्टीप्लाई कर पाएंगे। लेट अस सी हाउ। a विल बी मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर, सो इट विल बी a क्यूब, पावर्स एड अप हो गई, 1 प्लस 2 इट विल बी 3, सो a क्यूब प्लस हियर मल्टीप्लाई a बाय 3a, इट विल बी 3, a इंटू a इज a स्क्वायर प्लस a को अब मल्टीप्लाई कीजिए 5 से, सो 5a। देखिए ऐसा करने पे हमने ये जो फर्स्ट टर्म है इसको सेकेंड एक्सप्रेशन की हर एक टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया है, और यही तो कहा जाता है कि हमें दोनों एक्सप्रेशंस में पहले एक्सप्रेशन की हर एक टर्म को सेकेंड एक्सप्रेशन की हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करना है, और वही हमने कर लिया है। ये फर्स्ट टर्म a को हमने सभी टर्म से मल्टीप्लाई कर लिया है। अब हम सेकेंड टर्म को सभी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड एक्सप्रेशन की, तो वो है यहाँ पर 7 और 7 को मल्टीप्लाई करते हैं a स्क्वायर से, सो इट विल बी प्लस 7a स्क्वायर। देन मल्टीप्लाई 7 बाय 3a, इट विल बी 7 3 21 एंड a। देन मल्टीप्लाई 7 बाय 5, इट विल बी 7 5 35। और यहाँ आप देखिए ब्रैकेट से पहले यहाँ प्लस है तो किसी भी टर्म का साइन चेंज नहीं हुआ है, सो प्लस इज ऑलवेज ईजी टू डील विद, इजंट इट? Now we will be collecting the like terms together. Just have a look. Are there any two like terms? You will see a cube is a single term. Then you see a square, 3a square and 7a square. दोनों ही केस में वेरिएबल सेम है, पावर सेम है, तो ये दोनों like terms हैं. We can merge these two terms together. Let us write them together. a क्यूब तो हो गई फर्स्ट टर्म और फिर हम लिख रहे हैं 3a स्क्वायर
प्लस 7a स्क्वायर। हमने लाइक टर्म्स एक साथ लिख ली। आर देयर एनी अदर टू लाइक टर्म्स? येस दे आर। यू सी 5a एंड 21a, दोनों में ही वेरिएबल है a और पावर सेम है, सो वी कैन easily merge these two terms together, write them together, 5a plus 21a, and then we have 35 in the end. Now what we have to do? A cube, and now join these two terms, 3 plus 7, it will be 10, and the variable part will be as it is, a square, plus join these two terms, 5 plus 21, it's 26, and the variable will be written as it is, then plus 35. This is the final answer. अब आप देखेंगे यहाँ पर कोई भी दो terms like terms नहीं है और यही है final answer. Now on the basis of all this discussion, we can easily do example number 8 from your book. Multiply x minus 4 and 2x plus 3. So let us multiply them. X minus 4 into 2x plus 3. What we have to do? We have to multiply each term of one expression by each term of the second one. और उसके लिए हम पहले एक्सप्रेशन की पहली टर्म लिखेंगे जो है x, और इसके आगे ये सेकंड एक्सप्रेशन एज इट इज़ उतार देंगे 2x plus 3. फिर हम लिखेंगे पहले एक्सप्रेशन की ये दूसरी टर्म जो है -4, और इसके आगे ये सेकंड एक्सप्रेशन एज इट इज़ लिख देंगे 2x plus 3. ऐसा करने से हम इजीली अब x को सेकंड एक्सप्रेशन की हर एक टर्म से मल्टीप्लाई कर पाएंगे, और यहाँ से -4 को भी हम सेकंड एक्सप्रेशन की हर एक टर्म से मल्टीप्लाई कर पाएंगे. लेट अस सी हाउ. x into 2x, it will be 2x square, then plus x into 3, it will be 3x. पहले हम नंबर लिखते हैं या कोएफिशिएंट लिखते हैं और उसके बाद हम वेरिएबल लिखते हैं. दिस आई होप इट इज़ क्लियर इन योर माइंड. नाउ we will be multiplying -4 by 2x, it will be -4 2s are 8 and then x. Then multiply -4 by 3 plus, यहाँ पर प्लस है और यहाँ माइनस प्लस, it will be -4 3s are 12. Is this the final answer? No. Here you will see there are two like terms, 3x and -8x. यहाँ पर वेरिएबल सेम है, पावर भी सेम है, तो ये दोनों like terms हैं, इनको एडअप करना होगा. What we get now? 2x square and 3 minus 8, it is -5, और वेरिएबल ऐसे ही आ जाएगा x and then -12. Now we have no two terms like terms, and so this is the final answer. ठीक है, easy है, very easy. Next we take multiply x minus y and 3x plus 5y. We write them here, x minus y into 3x plus 5y. We are multiplying these two expressions. तो पहले एक्सप्रेशन की पहली टर्म है x, इसके आगे लिख लेते हैं सेकेंड एक्सप्रेशन जो है 3x plus 5y, और फिर हम लिखते हैं पहले ही एक्सप्रेशन की सेकेंड टर्म जो है -y, और फिर हम लिखते हैं सेकेंड एक्सप्रेशन 3x plus 5y. ये लिखना आ गया सही से, तो आगे कुछ भी मुश्किल नहीं है. नाउ व्हाट नेक्स्ट? वी विल बी मल्टीप्लाइंग x बाय बोथ दीज टर्म्स. x into 3x, it will be 3x square, and then x into 5y, 5xy, and with a plus sign, plus 5xy. यहाँ पर वेरिएबल्स अलग अलग हैं तो पावर्स एडअप नहीं होंगी. देन हियर मल्टीप्लाई -y by 3x, तो -3 and then yx और xy, it means the same, so we will be writing xy. क्योंकि यहाँ xy लिखा है तो यहाँ भी xy लिख लेते हैं. Then multiply -y by 5y, you will get minus into plus will be -5, और अब वेरिएबल सेम है y, तो पावर्स एडअप हो जाएंगी, it will become y square. Now we will be adding these two like terms. देखिए 5xy minus 3xy, वेरिएबल सेम है, पावर सेम है, तो like terms है. और अब हम फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे? 3x square plus 5 minus 3 is 2. Then write the variable part as it is, xy, and then -5y square. This is the answer. This is the product of these two expressions. Next we take example 9. Multiply a plus 7 and b minus 5. a plus 7 into b minus 5. कैसे करेंगे? करिए आप. Pause the video and try to do it once on your own and then check your answer from here. Yes, we will be first writing the first term from first expression a, then write the second expression b minus 5. और फिर हम लेंगे second term first expression से जो है plus 7 and then multiply it by b minus 5. It's very easy. Now multiply a by b, you will get ab, then minus a into 5 will be 5a. Getting it?
plus multiply 7 by b, you will get 7b, and then plus into minus is minus, 7 into 5 is 35. Now there are no two like terms and so this is the final answer. देखिए आप, कोई भी दो terms like terms नहीं है. यहाँ पर variable part है a b, यहाँ single a है, यहाँ single b है और यहाँ ये constant है. तो यही है आपका final answer. We take the second part. We have to multiply a square plus 2b square by 5a minus 3b. कैसे करेंगे? फर्स्ट एक्सप्रेशन की फर्स्ट टर्म लिखेंगे ए स्क्वायर, उसके आगे ये सेकेंड ब्रैकेट पूरा ऐसे ही लिख लेंगे 5a माइनस 3b, और फिर हम लिखेंगे फर्स्ट एक्सप्रेशन की सेकेंड टर्म विच इज़ 2b स्क्वायर एंड राइट द सेकेंड एक्सप्रेशन 5a माइनस 3b. नाउ वी विल बी मल्टीप्लाइंग ए स्क्वायर बाय बोथ दीज टर्म्स, और ऐसा करने पे हम यहाँ पर पहले एक्सप्रेशन की पहली टर्म को दोनों ही टर्म्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेकेंड एक्सप्रेशन की. a square into 5a, it will be 5 and a cube. We are adding the powers because the variable is same a. So 2 plus 1, the power will be 3, 5a cube minus here multiply a square by 3b. You will get 3 as the number first, then a square and then b. ठीक है. Now multiply 2b square by 5a. 2 5s are 10 and it will be plus 10 and now a b square, यहाँ से a और यहाँ से b square, then plus into minus, यहाँ पर है plus और यहाँ है minus, so plus into minus will be minus 2b square into 3b, 2 3s are 6, b square into b will be b cube. Add up the powers of the variable b here. Now are there any two terms which are like terms? No, all the terms are different ones. यहाँ पर आप देखिए a स्क्वायर भी है और यहाँ a b स्क्वायर है, तो वेरिएबल्स तो सेम है पर पावर्स अलग अलग हैं. यहाँ a की पावर है 2 और यहाँ a की पावर है 1, तो सेम टर्म्स नहीं है और इसलिए कोई भी दो टर्म्स यहाँ पर लाइक टर्म्स नहीं है. सो दिस इज द फाइनल आंसर. नेक्स्ट वी टेक एग्जाम्पल नंबर 10. सिंप्लीफाई a प्लस b इंटू 2a माइनस 3b प्लस c माइनस 2a माइनस 3b इंटू c. तो यहाँ पर आप देखेंगे एक्चुअली वी आर हैविंग टू टर्म्स इन दिस एक्सप्रेशन. देखने में तो बहुत सारी टर्म्स लग रही हैं पर क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई होने वाले एक्सप्रेशंस को हम एक ही टर्म गिनेंगे. दिस इज द फर्स्ट टर्म एंड दिस इज द सेकंड टर्म, और अब हमें इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है. तो पहले हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, फिर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और फिर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. लेट अस राइट फर्स्ट a प्लस b इंटू 2a माइनस 3b प्लस c. इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? देखिए आप, यहाँ पर पहला एक्सप्रेशन है a प्लस b, वहाँ से फर्स्ट टर्म ली a और इसको मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड एक्सप्रेशन से 2a माइनस 3b प्लस c, और फिर हम यहाँ से लेंगे सेकेंड टर्म प्लस b और इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे पूरे सेकेंड एक्सप्रेशन से 2a माइनस 3b प्लस c. नाउ व्हाट वी विल बी डूइंग? मल्टीप्लाई a बाई ईच ऑफ दीज टर्म्स. a को इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे. पहले 2a से किया सो वी विल गेट 2a स्क्वायर, देन माइनस 3 और a को b से करेंगे ab, देन a इंटू c विल बी ac. अब हम यहाँ पर b को इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे. वी विल बी हैविंग 2b इंटू a कैन बी रिटन एज ab, देन माइनस 3b इंटू b विल बी माइनस 3b स्क्वायर. b की पावर्स एडअप हो गई और अब b को c से मल्टीप्लाई करेंगे. वी विल बी हैविंग bc विद प्लस साइन, प्लस एंड प्लस प्लस bc. ठीक है. नाउ जस्ट लुक आउट फॉर लाइक टर्म्स. यहाँ देखिए आप, ab और ab, ये टर्म और ये टर्म, यहाँ पर वेरिएबल पार्ट सेम है तो ये लाइक टर्म्स हैं. वी विल बी एडिंग दीज टू टर्म्स. इसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पर 2a स्क्वायर and now minus 3ab plus 2ab. What we get? We will be adding the coefficients. Minus 3 plus 2, it will be minus 1 and no need to write this 1. So simply write minus and write the variable part ab. So we will be having minus ab. Minus 3ab plus 2ab से हमें मिल गया minus ab. Then write the other terms plus ac minus 3b square plus bc. Now we write in a proper form. First we take the square terms. 2a square माइनस 3b स्क्वायर, ये हो गई स्क्वायर टर्म्स. इसके बाद हम लेंगे a b b c और c a. इस पैटर्न में रखते हैं. वी विल हैव माइनस a b प्लस b c प्लस a c. ठीक है. यहाँ से पहले हमने 2a स्क्वायर लिया, फिर माइनस 3b स्क्वायर, स्क्वायर टर्म्स एक साथ लिख ली. इसके बाद a b b c और c a या कह लीजिए a c.
This is the proper way to write. Now we will be simplifying this expression. 2a minus 3b into c. कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? ये जो टर्म है c, ये दोनों ही टर्म से मल्टीप्लाई होगी. व्हाट वी विल बी हैविंग? 2ac minus 3bc. सिंपल. नाउ वी विल बी सब्ट्रैक्टिंग दीज टू एक्सप्रेशंस. ये हमें मिल गया फर्स्ट फॉर्म को सिंप्लीफाई करने से, और फिर ये मिल रहा है सेकेंड फॉर्म को सिंप्लीफाई करने से. बस अब इन्हें सब्ट्रैक्ट करना है. देखिए इनके बीच में ये माइनस साइन है. सो नाउ वी विल बी सब्ट्रैक्टिंग. लेट मी मेक सम स्पेस. नाउ 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर माइनस ab प्लस bc प्लस ac. इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 2ac माइनस 3bc. क्या हमने सही लिखा है? बिल्कुल नहीं. यहाँ पर एक चीज़ मिस कर गए हम, और वो क्या है? जब भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्शन के साइन के बाद जो भी एक्सप्रेशन आ रहा है उसको ब्रैकेट में एनक्लोज कीजिए, क्योंकि बाद में ये माइनस इन सब की साइन को चेंज करने वाला है. हमें पता है सब्ट्रैक्ट करने पर बाद वाले एक्सप्रेशन की सभी टर्म्स के साइन चेंज होते हैं, तो इसीलिए हमें इसे ब्रैकेट में एनक्लोज करना चाहिए, और फिर जब हम ये ब्रैकेट ओपन अप करेंगे तो सभी टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे. इन केस यू मिस आउट दिस ब्रैकेट, देन व्हाट यू विल हैव? अगर आप ये ब्रैकेट मिस आउट कर दें तो आप इसे लेंगे माइनस 2ac और इसे लेंगे माइनस 3bc. तो इस टर्म का साइन तो चेंज किया ही नहीं आपने, तो गलत हो जाएगा. सो फर्स्ट वी प्लेस वन bracket here in this way, and now we will open up this bracket. This will be 2a square minus 3b square minus ab plus bc plus ac minus 2ac, and then now see minus minus plus 3bc. देखिए आप, ब्रैकेट ओपन करने से हमारी जो टर्म्स है उनके साइन चेंज हो गए. 2ac माइनस का हो गया और 3bc पहले माइनस का था प्लस का हो गया. अगर आपने ये ब्रैकेट नहीं लगाया माइनस करने के बाद तो आपसे ये साइन की मिस्टेक हो सकती है. सो ऑलवेज रिमेंबर, वाइल सब्ट्रैक्टिंग वन एक्सप्रेशन फ्रॉम द अदर, you will have to place one bracket outside that expression which is to be subtracted. जिस एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना है उसे आप पहले ब्रैकेट में एनक्लोज कीजिए और फिर आप सब्ट्रैक्ट कीजिए. ब्रैकेट को खोलेंगे तो अपने आप ही ये बाद वाले एक्सप्रेशन की सभी टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे, एंड देन यू विल गेट द राइट आंसर. गेटिंग इट? नाउ व्हाट वी हैव टू लुक आउट फॉर? For like terms, just have a look. Are there any two like terms? You will see here AC and minus 2AC. यहाँ पर वेरिएबल पार्ट बिल्कुल सेम है, तो ये दोनों like terms हैं. साथ ही साथ आप देखिए BC and 3BC. These two are again like terms. So these like terms will be merged together. And now, are there any other two like terms? No. So we can write the answer 2A square minus 3B square minus AB. And now merge these BC terms. यहाँ पर कोई भी नंबर विजिबल नहीं है, इसका मतलब 1BC. This is 1BC and 1 plus 3 will be 4. So we can write plus 4BC. Now AC minus 2AC. यहाँ पर भी कोई नंबर विजिबल नहीं है, मतलब नंबर है 1. The coefficient is 1 here, and so 1 minus 2 will be minus 1. No need to write 1. We will straight away write AC. And now this is the final answer. No more like terms are there, and so this is the final answer. So how we have solved? First we multiplied these two expressions and got the simplified form. Then we multiplied these two expressions and got the simplified form, and then we subtracted, writing the first expression and then the second one, and closing the second expression by a bracket and then a minus sign in between. Then open up the bracket and then just merge the like terms together, and then you will get the final answer. Practice this question. And so this was the topic where we learnt how to multiply a polynomial by another polynomial. In our next video, we will take up exercise 9.4 based on all this. Okay then, goodbye.